ready to help the students as well as the faculty in facilitating the research work free of cost at his private clinic. And I think this is a very, and he needs a round of applause for that. Last but not the least, father of diagnostic ophthalmology, Professor Dr. Suresh Sharma. So we are privileged and honored to have you here to give us a hands-on workshop on ultra biomicroscope. Sir, please come on the rostrum and enlighten us with your knowledge. My seniors and my professors, they allowed me to work in diagnostic ophthalmology as my wish and continue it, and did not let me go anywhere from that area. And then I borrowed my own specialty through health department, and this made my career as diagnostic ophthalmology. Ultra biomicroscopy, as Dr. Saman has already introduced, that it is very near to biomicroscope, but that ultra means ultrasound biomicroscope. So ultrasound biomicroscopy, we can do biomicroscopy of anterior segment of the eye by two methods. One is ultra biomicroscopy, which use the ultrasound rays, and there is light rays. If we use the light rays through the OCT machine, this is called the anterior segment OCT. And in this presentation, we will have some difference of characteristics on ultra biomicroscopy in anterior segment. This is conventional B scan. In the B scan, we measure the posterior segment, and its depth is far more than the ultra biomicroscopy. So what are the differences between ultra biomicroscopy, B scan, and anterior segment OCT? Source is, in both of these, ultrasound is used, and here it is laser light is used. And the frequency here is ultra biomicroscopy is 50 megahertz, because it is we have to measure the anterior segment, and this high frequency allows us to measure the things which are in very close to the probe. But this ultra biomicroscopy has very less penetration, and it does not go beyond 4 or 5 millimeter of the depth. Whereas the B scan, it goes up to the 10, it has megahertz, 10 megahertz, and it goes up to the 4 centimeter depth. Here the light rays is used. Different types of OCTs are used nowadays, and they have different wavelengths. Here for the anterior segment, and particularly for ultra biomicroscopy, for biomicroscopy of anterior segment, we use a special type of machine which is called a Visante. That is the name of the machine of the manufacturer, and it uses 1310 nanometers of wavelength. The wavelength is increased, so its penetration is increased as compared to other OCTs which has less wavelength, and they have less penetration. So spectral domain, which was previously available, has only 850, so it has 850 नैनोमीटर. तो इसकी एंटीरियर सेगमेंट में पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और इसकी स्वेप्ट सोर्स की जो है इससे थोड़ी सी बेहतर है. अब ये पेनिट्रेशन, इसमें पेनिट्रेशन और इसमें पेनिट्रेशन का क्या मैं मकसद लेता हूँ, यहाँ पर जहाँ पर OCT आ जाएगी वहाँ पर एक, चूँकि ये लाइट रेज है, इसलिए इसकी एक लिमिटेशन है. लिमिटेशन ये है कि जहाँ पर पिगमेंट आ जाए, जहाँ पर ओपेक मीडिया आ जाए, इट डज नॉट ट्रैवल थ्रू द ओपेक मीडिया. अब ओपेक मीडिया के अंदर सबसे पहले हमारे यहाँ पर नॉर्मल जो है वो कॉर्निया तो क्लियर होता है, कॉर्निया के अंदर से तो निकल जाती है, आइरिस के एंटीरियर सरफेस तक भी पहुँच जाती है, लेकिन एंटीरियर सरफेस से पीछे जो उसकी अंदर स्ट्रोमा है उसके अंदर लाइट रेज नहीं जा सकती. सो आप सिर्फ सरफेसेस को आप हाईलाइट कर सकते हैं. इसी तरह जब आप स्क्लेरा में देखते हैं तो स्क्लेरा भी एक ओपेक मीडिया है, और स्क्लेरा के थ्रू भी उसकी पेनिट्रेशन नहीं हो सकती OCT की लाइट रेज की. इसलिए एंटीरियर सेगमेंट OCT जब भी आपने करना है, यू हैव टू यूज़ द अल्ट्रासाउंड मीडिया. और इस चीज़ को एनकाउंटर करने के लिए उन्होंने वेवलेंथ बढ़ा दी, लेकिन इस वेवलेंथ बढ़ाने से भी वो मकसद हल नहीं हुआ जो अल्ट्रासाउंड से हमें स्ट्रक्चर्स की डिटेल पता लगती है.
So this is the main difference between the UVM of ultrasound and anterior segment OCT, the wavelength and the media of ultrasound. So resolution is 50 microns, 40 microns and 10 microns. Obviously इसकी resolution तो अच्छी है, लेकिन ये resolution उसी सूरत में अच्छी है जब ट्रांसपेरेंट मीडिया हो। मतलब कॉर्निया की अगर आपने डिटेल देखनी है तो कॉर्निया ऐसा इसके अंदर बहुत अच्छा नज़र आता है बिकॉज इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट थिंग। लेकिन अगर आपने सिलियरी बॉडी देखनी है, आइरिस की बैक देखनी है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आइरिस से देखना है तो यहाँ से आपको विजिबल नहीं होगा। उसके बाद लिमिटेशन, दिस इज़ द मेन लिमिटेशन ऑफ दिस एंटीरियर सेगमेंट ओसीटी। उसके बाद ऑपरेशन जो है ये सारा मैनुअल होता है, ये भी मैनुअल होता है, इसको आप डिजिटाइज या कंप्यूटराइज्ड या आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। इसके अंदर ये प्रोग्राम्ड होता है। प्रोग्राम से मुराद ये है कि आप एक डिफरेंट एंगल्स पे अपनी मर्ज़ी से एक एंगल्स के ऊपर आप ले सकते हैं और वो एंगल जो है पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होता है और आप उसमें, जबकि अल्ट्रासाउंड के अंदर वो सारी चीज़ मैनुअल होती है और एग्जैक्टली आप मेजरमेंट बाई मेजरमेंट, मेरिडियन बाई मेरिडियन, रफली ग्रॉसली जा सकते हैं। तो ये एक इसमें थोड़ा सा एडवांटेज इसके अंदर है प्रोग्राम का। और स्टडीज़ के अंदर चूँकि ये यूवीएम जो है यहाँ पर ज़्यादा क्वालिटेटिव स्टडीज़ होती हैं, यहाँ भी क्वालिटेटिव हो सकती हैं, लेकिन इसके अंदर जो क्वांटिटेटिव अगर आपने करनी है तो वो फिर आपने उसके ऊपर जाना है। एंगल की मेजरमेंट्स अगर पर्टिकुलरली करनी है तो जो मेजरमेंट्स वगैरह है, क्योंकि स्टैटिक पोजीशन के अंदर एक पर्टिकुलरली एंगल के ऊपर अगर आपने करना है तो यहाँ आप क्वांटिटेटिव स्टडीज़ यहाँ बेहतर कर सकते हैं। इधर अल्ट्रासाउंड के ऊपर आप ज़्यादातर क्वालिटेटिव या आप डायग्नोस्टिक्स कर सकते हैं कि भाई क्या पैथोलॉजी है, किधर है, स्ट्रक्चर्स आर लाइंग वेयर, अगर एक ओपेक मीडिया उसके पीछे क्या स्ट्रक्चर्स हैं, आइरिस की क्या स्ट्रक्चर्स है, इंटीरियर चैम्बर की क्या पोजीशन है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ आप अल्ट्रा बायो माइक्रोस्कोपी में भी ये क्वांटिटेटिव लेके आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। ये है वो विसांते ओसीटी। इसमें मैं आपको डिक्लेयर कर दूं कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसी मशीनों के अंदर, ठीक है कि नहीं। तो ये वैसे वर्सा है, उल्टा है, उनका इंटरेस्ट है मेरे में कि शायद मैं ख़रीद लूँ ये मशीन, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पर ये देखें ओसीटी के अंदर, जब ओसीटी के अंदर आपको आया तो ये सारा सेगमेंट जो है ना ये विसांटे के अंदर सब कुछ नजर आया। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। यहाँ पर आप ये देखें कि आइरिस की सिर्फ एंटीरियर सरफेस नजर आई है आपको, पोस्टीरियर डिटेल और पोस्टीरियर कंटूर्स नहीं नजर आई। और यहाँ पर आप सीधी बॉडी भी नज़र नहीं आ रही, पूरी आइरिस के कंटूर्स भी नज़र नहीं आ रहे। और ये तो है विसांटे जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है और पर्टिकुलरली ये बनाई ही एंटीरियर सेगमेंट के लिए गई। और अगर आपके पास जो हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं जो 810 या 30 है, उसके अंदर यहाँ पर ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इस जगह पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यहाँ से जब सक्लेरल स्पल्स से आगे जब शुरू हो जाता है तो यहाँ से शेडो हो जाता है एंड दी एंगल्स की डिटेल जो है वो हमारे आम कन्वेंशनल जो ओसीटीज़ हैं उसके अंदर नहीं आती। तो एंटीरियर सेगमेंट ओसीटी जब आपने करवाना है या उसकी डिटेल मेजरमेंट करवानी है तो एंटीरियर सेगमेंट ओसीटी सिर्फ आप कॉर्निया तक रखें। एंटीरियर सेगमेंट ओसीटी मेरे पास भी है, यूबीएम भी है। मैं एंटीरियर सेगमेंट ओसीटी उस वक्त इस्तेमाल करता हूँ सब जब मैंने सिर्फ ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट कॉर्निया को एवेल्युएट करना है कि उसके अंदर अगर एक ओपेसिटी है वो ओपेसिटी कितनी डेप्थ के अंदर है, या अगर पीछे जो है डेस्मस मेम्ब्रेन रप्चर हुआ है और उसका अनफोल्डिंग हुई है, डिटैच हुआ है, तो उसकी एनाटमी देखने के लिए एंटीरियर सेगमेंट ओसीटी, बिकॉज नाउ आई एम डीलिंग ओनली विद द ट्रांसपेरेंट मीडिया। जहाँ पर ओपेक आ जाएगा, जहाँ पर सब कुछ आ जाएगा, वहाँ पर इंटीरियर सेगमेंट ओसीटी नहीं आएगा। अब एंगल के लिए अगर मैंने देखना है तो वो जो कन्वेंशनल हमारे पास ओसीटीज़ हैं, शांति नहीं है अगर हमारे पास, तो मैं आई विल शिफ्ट ऑन टू अल्ट्रा बायो माइक्रोस्कोपी। हाँ जी, आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। एंटीरियर सेगमेंट जब ओसीटी कर रहे होंगे तो वो आपको एक डॉट से नज़र आएंगे और वो डॉट हाईलाइट हो जाएंगे और उनमें अगर वो पिगमेंटेड हैं या कुछ ज़्यादा ओपेक हैं तो वो सिर्फ उनकी एंटीरियर सर्फेसेस नज़र आएंगी, और अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो उसकी पूरी थोड़ी सी सारी नज़र आएगी। सेल्स जो हैं वो तकरीबन आपको डॉट्स की तरह के नज़र आएंगे। उसके अंदर केपीस की बात कर रहे हैं या आप क्लम्प्स की बात कर रही है, या जैसे भी आइरिस में वो सारी अब इसमें देखते हैं। अब ये जो अल्ट्रा बायो माइक्रोस्कोपी ये आपके सामने पड़ी हुई है, ये अल्ट्रा बायो माइक्रोस्कोपी आम इसकी एक प्रोब होती है, लेकिन इसकी प्रोब स्पेशल होती है। अब स्पेशल क्यों होती है, ये मैंने आपको तस्वीर दिखाई है कि सिंपल एक प्रोब है। अब मैं बताऊंगा इसकी डिटेल के लिए आगे से फ्रंट से डिफरेंट क्यों होती है। और यहाँ पर भी ये एक निशान होता है जो कि आपको बताता है कि इस साइड वाली स्ट्रक्चर्स, इस वाली जहाँ पर अगर आपने क्रॉस सेक्शन लेना है किसी टिश्यू का, तो उस टिश्यू का इस साइड वाली सरफेस दैट विल बी विजिबल ऑन द सुपीरियर, ऑन द अपर पार्ट ऑफ द
स्क्रीन, सॉरी मैंने लफ्ज़ गलत बोल दिया, सुपीरियर नहीं, ऑन द अपर पार्ट ऑफ द स्क्रीन। अब मैंने ये पूछा, मैंने अब बोला है कि दिस साइड ऑफ द टिश्यू विल बी विजिबल ऑन द अपर पार्ट ऑफ द स्क्रीन। इस पूरे सेंटेंस के अंदर मैंने सुपीरियर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, इन्फीरियर का, नेज़ल का, कहीं का नहीं इस्तेमाल किया। अब वो साइड है, जिस साइड पे आपका वो टिश्यू पड़ा होगा, मसलन ये है कि यहाँ पर अगर ये प्रोब है और ये मेरी आई बॉल है, तो ये आई बॉल का ये वाला पोर्शन जो है वो अपर पार्ट पे नज़र आएगा अगर मेरा वो वाइट लाइन इधर है तो। और ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट अगर नेज़ल है तो नेज़ल ऊपर नज़र आएगा, ये पार्ट अगर टेम्पोरल है तो टेम्पोरल ऊपर नज़र आएगा, ये पार्ट अगर इन्फीरियर है तो इन्फीरियर ऊपर नज़र आएगा। और इसलिए जनरली यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ये लाइन होती है कि यहाँ पर जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो सुपीरियर पार्ट है, सुपीरियर का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद इसकी जब आप फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये एक स्पेशल चीज़ नज़र आ रही है, इसके अंदर कोई आपको फ्लूइड नज़र नहीं आ रहा, पानी नज़र नहीं आ रहा। ये यू कैन से दैट इट इज़ ऑल नेकेड। नेकेड से मुराद ये है कि ये वो वाइट रंग का पीजो इलेक्ट्रिक है जो अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है। ये आपको थ्योरी का पता है कि ये जो अल्ट्रासाउंड होती है ये इसमें एक पीजो इलेक्ट्रिक होता है, बीच में से एक करंट आता है। वो पीजो इलेक्ट्रिक दो काम करता है, एक तो काम ये करता है कि वो साउंड को एमिट करता है, दूसरा काम ये करता है कि वो साउंड को रिफ्लेक्टेड साउंड को एब्जॉर्ब करके उसको वापस कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल वेव्स में। तो ये जो पीजो इलेक्ट्रिक है ये इसमें नेकेड होता है और नेकेड होके बिल्कुल एक्सपोज होता है। उनकी वजह से, उसकी वजह ये है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी ये जो साउंड वेव्स फेंक रहा है 50 मेगाहर्ट्ज़, उसके ऊपर थोड़ी सी भी कोई एक चीज़ आ जाए या कुछ आ जाए तो उसकी डैम्पनिंग शुरू हो जाएगी। डैम्पनिंग के मतलब ये है कि उसका इफेक्ट नहीं रहेगा, वो वहाँ से सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी और वहाँ से आगे नहीं जाएगी। इसलिए इसको टोटली नेकेड रखा हो। अब नेकेड करने के बाद आपने इसको डायरेक्टली कॉर्निया के ऊपर कैसे इस्तेमाल करना मैं बताता हूँ। और इसके